Assalamu alaikum and welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam Sarish. Today we will be discussing about the Drug Act 1976. आज हम इस ड्रग एक्ट 1976 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक जो है वो सारी सेक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे. जो ड्रग एक्ट 1976 था, that comes into power in the 11th of the May 1976, और that act regulate the import, export, manufacture, storage, distribution और the sales of the drug. So, चलें विदाउट एनी डिले इसका चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं. एंड द चैप्टर 2 इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट. तो चलें ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 that ensures the administration of the power and ensures the enforcement of the law. तो सबसे पहले जिसकी है वो है रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द इम्पोर्ट एक्सेट्रा. मतलब इन द चैप्टर 2 सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द इम्पोर्ट एक्सेट्रा. यानी जो ड्रग एक्ट है वो प्रोहिबिट कर सकती है किसी ड्रग की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, या रेगुलेट भी कर सकती है. कैसे? फॉर एग्जांपल, द फेडरल गवर्नमेंट शैल रेगुलेट द import and export of the drug in the prescribed manner, and any person and for any purpose may make such orders for the issues of the directions in which the importers and exporters can export and it is deemed fit. यानी वो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी भी बता सकते हैं जिसमें जो ड्रग है वो जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, और ऐसी कंडीशंस जो है वो जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेहतरीन कंडीशंस में हो, डीम फिट में हो, वो कंडीशंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा. उसके अलावा if the in the opinion of the federal government the public interest is so required, the federal government may by the notification of the official gazette क्या करेगा? Direct that the drug or a class of the drug specified in the notice or the drug generally shall not be imported or exported otherwise the under the authority of the license issued under the act exempt or the accept the importer or exporter through the intenders registration according to the rules. उसकी जो import और export होगी वो कह रहा है कि उसकी import और export जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे इसका इंडेंटर इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो लाइसेंस रखता है. Direct that a drug and a class of the drug are specified in the notification shall not be imported or exported by the agency of the government or so specified. यहाँ पे जो भी एजेंसी है वो जो है वो shall not जो है वो अब वहां पे जिसकी ड्रग की जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करे, agency of the government prohibited the import and export of any drug of the class of the drug specified. या किसी भी ड्रग ऑफ द क्लास की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या वो कर सकता है, वो इनहिबिट कर सकता है. Subject of to the subsection 1 and 2 only such drugs shall be imported which are sale in the market by the any of the western country, European countries, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री जहाँ पे वो ड्रग सेल हो रही है और प्रिस्क्राइब हो रही है. आगे आ जाती है रेगुलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग. अब जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो गई है उसकी रेगुलेशन कैसे करनी है. The grant of the license for the manufacturing of the drug shall be regulated according to the condition and the procedures may be prescribed. यानी जो भी conditions या जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है कि इसमें जो ड्रग की मैन्युफैक्चर रेगुलेट होनी है उनको फुलफिल करना चाहिए. Prescribed by the Central Assessing Board to be set up by the federal government and consisting of the representative of the federal government and provincial government may be prescribed. आगे 2 में क्या बता रहे हैं? The members of the Central Assessing Board shall exercise the power of including the power of the inspector. जो भी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनके पास क्या पावर होगी? पावर ऑफ द इंस्पेक्टर. द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड शैल with the approval of the federal government and notification of the official gazette make regulation to regulate and conduct its business. Any member of the central assessing board at the any time by the writing क्या करेगा? Under his rank addressing the federal government and resign from his office and will vacate his office if it the federal government being of the opinion that the public interest में उसका जो है वो रिजाइन है वो भी ले सकते हैं. And the Supreme Court can also force for this resign. ठीक है. When our drug get approved by the FDA, so then after the 2 to 3 years जो है वो ड्रग जो है वो पाकिस्तान में आता है, क्योंकि पाकिस्तान don't have the sufficient budget
फॉर द एंड द रिसोर्सेज फॉर द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और फिर उसको रेगुलेट करे, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करे, और फिर देन जाकर उस ड्रग को जाके वो जो है वो अप्रूव करे। सो लाइसेंस बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रलाइज्ड बोर्ड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट, एंड इट्स सिंडिकेट बोर्ड फॉर द लाइसेंसिंग। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की जब मीटिंग होती है तो उसके लिए जो भी स्टेशनरी, मीटिंग रूम्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल वगैरह जो चाहिए होता है वो सारा का सारा उनकी एसओपीज में जो मेंशन होता है, चीजें जो सारी सारी चाहिए होती हैं, वो बोर्ड मीटिंग से पहले पहले अरेंज करनी होती हैं, और वो सारी उनके जो फंड्स हैं उसके थ्रू होते हैं। So the federal and provisional board give NOC for the regulation of the prohibition, के केस में भी जो ड्रग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, अगर अगर जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको वो एनओसी दे तब। उस केस में जो प्रोहिबिटेड आइटम्स होंगी वो भी जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है की जा सकती हैं। Subject to the subsection 4, member of the Central Assessing Board shall hold office under the prescribed period। जो भी उनका इस प्रिस्क्राइब पीरियड है, मोस्टली जो ड्रग एक्ट है, पंजाब ड्रग एक्ट, उसमें जो है वो उनका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो तकरीबन 4 साल फॉर दी प्राइवेट मेंबर्स बताया हुआ है। आगे है रेगुलेशन फॉर द सेल ऑफ द ड्रग। कैसे सेल ऑफ द ड्रग को रेगुलेट करना है? द गवर्नमेंट, द प्रोविजनल गवर्नमेंट शैल रेगुलेट द सेल ऑफ द ड्रग in the prescribed manner and may for the purpose to make such orders and issue such directions to the importers and manufacturer and stockists, retailers and the dealer of the drug कि इस ड्रग की जो सेल है उसको आपने रेगुलेट करना है। वो रेगुलेट करने वाले कौन होंगे? उसके इंपोर्टर्स, उसके मैन्युफैक्चरर, उसके स्टॉक करने वाले, उसके रिटेलर और उसके डीलर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके वेंडर्स वगैरह। आगे आ जाती है रेगुलेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग को रेगुलेट कैसे करना है? द फेडरल गवर्नमेंट शैल इशू ऑल ड्रग टू बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डिंग टू द सच कंडीशन एंड प्रोसीजर। यानी ड्रग जब रजिस्टर किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू सच कंडीशंस किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो होता है वो उस कंडीशंस को जब फुलफिल करते हुए देखता है तब वो जाकर ड्रग जो है वो रजिस्टर करता है। कंसिस्टिंग ऑफ consisting of the such as members, processing and qualification जो prescribed होगी। आगे आ जाती है एक्सप्लेनेशन कि कब ड्रग जो है वो उनको लाइसेंस इशू करेंगे। In this section of the drug means any drug that is the finished product or it is ready for the use. The member of the registration जो board होगी shall exercise the power including the power of the inspector। जो भी ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मेंबर्स होंगे उनके पास क्या पावर होगी? इंस्पेक्टर की पावर होगी। वो कहीं भी जाकर जो ड्रग प्रेमिसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है या जहाँ पे से क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हो रहे हैं वहां पे जाके इंस्पेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अगर वो ड्रग जो है इंस्पेक्शन और या वो ड्रग जो है वो फॉर द अप्रूवल और फॉर द रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई की गई है उसके लिए। तो द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट मेक रेगुलेशंस टू रेगुलेट एंड कंडक्ट द बिजनेस। और रजिस्ट्रेशन बोर्ड अपने बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये रेगुलेट कर सकती है कि कब कब जो है ना ड्रग जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड में एट एनी टाइम राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिजाइन कर सकता है फ्रॉम इट्स ऑफिस और शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ द फेडरल गवर्नमेंट बीइंग इन द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन नेसेसिटी टू डू सो। या फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको जो है वो जो है वो उसका फोर्सफुली रिजाइन जो है ले लेना चाहिए, तो उसका रिजाइन जो है वो ले लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 4, द मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल होल्ड द ऑफिस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द टाइम। वो उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम में क्या है अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करेंगे। आगे आ जाती है क्या? आगे आ जाता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट फिक्स द डेट। यानी वो अपने ऑफिशियल गजट रिलीज करेगा और बताएगा कि किन किन डेट्स में जो ड्रग है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की जा सकती है। और क्या करेगा? द फेडरल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट फिक्स द डेट आफ्टर विच द ड्रग which is not registered shall be allowed to be exported and imported, मैन्युफैक्चर, स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटर। यानी जो ड्रग रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रजिस्टर नहीं भी हुई, तो ऑफिशियल गजट के थ्रू वो उसकी डेट फिक्स कर देगा कि आफ्टर दैट ड्रग जो ड्रग रजिस्टर्ड नहीं हुई उसकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कंपनी करते हुए देखी गई कि वो किसी कोई नॉन रजिस्टर्ड ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसको स्टोर कर रहा है, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या बेच रहा है, तो उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। आगे आ जाता है अ पर्सन
7. A person applying for the registration of the drug shall furnish such information respect to their drug prescribed, including the information related to the efficacy, safety, quality, and quality and required for the registration board for the purpose of the evaluation of the drug. तो जो भी पर्पस से जो जो भी चीजें वायलेशन द ड्रग के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी वो उनको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और रजिस्ट्रेशन बोर्ड की से रिलेटेड जो होगा। उसके बाद जो हमारे सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग होंगे शैल बी रजिस्टर्ड जनरली बाय द जेनेरिक नेम्स। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल सिंगल ड्रग है, वो पैरासीटामोल के नाम से जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। एंड वाइल द कंपाउंड ड्रग शैल बी रजिस्टर्ड जनरली बाय द प्रोप्राइटरी नेम। सिंगल ड्रग तो अपनी नॉन प्रोप्राइटरी नेम या जेनेरिक नेम से हो गई इशू, रजिस्टर्ड हो गई, बट जो कंपाउंड ड्रग्स होंगी जैसे हमारे पास मायरिन एफ है जो कि 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन है, इथेमेटोल, आइसोनियाजिड्स, ठीक है, रिफेम्पिसिन वगैरह का 4 ड्रग्स का ये कॉम्बिनेशन है जो कि एंटी ड्रग है, तो वो अपने प्रोप्राइटरी नेम जैसे मायरिन 4 के नाम से जो है वो रजिस्टर होगा। Explanation of the subsection. Single ingredient means the drug containing the one active ingredient, and compound drug containing the means the drug containing more than one active compound. आगे जाती है, the registration of the shall be subject to the conditions may be prescribed। अगर registration करवानी है तो condition prescribed है उनको fulfill करनी है। 10 है, where the registration board registered a drug it shall inform a person applying for the registration and the provisional government of its having done so of the condition of the subject to be registered। यानी कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर किसी पर्सन ने अप्लाई किया है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट भी देखेगी कि जो भी कंडीशंस हैं वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होती हैं वो उसको फिलफिल कर रहा है। the registration board on the basis of the information received और इंक्वायरी कंडक्ट की है तो उनको ये चीजें जो है वो चाहिए क्या। the registration of the drug was procured by fraud and misrepresentation। कब कब वो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है अपनी जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा किसी कंपनी पर, जब उसने कोई प्रोडक्ट रजिस्टर करवा ली बाय द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योर्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन and circumstances in which the drug was registered is no longer exist। यानी जिस आइडियल कंडीशन को क्रिएट करके उन्होंने ड्रग रजिस्टर करवाया था अब वो फॉलो नहीं हो रही, तब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट विच ड्रग जहाँ पर रजिस्टर हुई थी उसकी कोई वायलेशन हो रही है। इफ इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट तब भी इंक्वायरी जो होगी कंडक्ट होगी। द रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आफ्टर ऑफ जो है वो offering the affording the person or whose application of the drug has been registered an opportunity of showing cause notice देगा उसको और एक्शन प्रपोज करने से पहले उनको एक बार अपना जो है ना कहने का मौका मिलेगा और देन उनका अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते देन उनका जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कैंसिल या सस्पेंड कर दी जाएगी। स्पेसिफाई एनी फर्दर कंडीशन इन द रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट and inform such person to the provisional quality control board। the provisional government क्या है, the provisional government shall take all the such steps to make ensure that the compliance with the condition जो है वो fulfilled हो, जिस conditions में उस drug को register किया गया था वही आगे जो है वो compliant रहे। which of the drug is registered and prevent the manufacturing and sale of the drug जहाँ पर जो है वो ये चीजें जो है वो फॉलो नहीं हो रही। अच्छा, सरप्राइज विजिट ऑफ द सेंट्रल असेसिंग बोर्ड भी हो सकता है या किसी इन दी केस अगर उनको कोई इरेगुलेटरी जो है वो उसकी शिकायत आई है उस केस में भी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जब जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो लाइसेंस उसके ऊपर भी लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की अपनी कंपनी के बारे में ताकि उनका लाइसेंस जो है वो इशू हो जाए और उसके बाद वो फॉलो नहीं हुआ। The provisional government shall be necessary to ensure the compliance which has been not registered and the register has been cancelled। या रजिस्टर कैंसिल कर देंगे अगर वो रजिस्टर जो है वो उस कंप्लाइंट कंडीशंस पे नहीं है तो ओवर ड्रग या तो रजिस्टर नहीं करेंगे, अगर रजिस्टर हो गया तो उसको कैंसिल कर देंगे। आगे आ जाती है पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी। The federal government of the Pakistan shall compile and publish an official gazette of the Pakistan National Formulary comprising of the all drug allowed for the import, export,
manufacturing, sold, and such formulary may be reviewed and be modified with the time to time. आगे आ जाती है एपलेट बोर्ड. एपलेट बोर्ड में अपील करते हैं जब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का या किसी ड्रग का जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो वो अपनी अपील देते हैं एपलेट बोर्ड में विद इन द 30 days आफ्टर द लाइसेंस सस्पेंशन एंड cancel. So the federal government shall, in accordance with the rules, constitute the appellate board for the disposal of the appeals referred by the person grievances by the decision of the Central Licensing Board, the Registration Board, or the Licensing Authority, or the Board of Authority, which powers the federal government under Section 12 have been delegated under the subsection that is supervision of the decision of its own motion. क्या क्या appellate board का काम होगा? The appellate board जो है ना अपील करेगी. अपील वो उसको हाई कोर्ट में लेके जाएगी. अगर हाई कोर्ट उसको फेल कर देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी विद आफ्टर 60 days. आफ्टर 60 days अगर वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी. वहां से रिजेक्ट हो जाएगी तो वो अपील जो होगी वो रिजेक्टेड ही रहेगी. अपीलेट बोर्ड के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद उससे रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जो है वो अपनी अपील जो है वो लेकर जाएगा. आगे आ जाती है द एपलेट बोर्ड का क्या क्या काम होगा. द एपलेट बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन of the federal government by that is approved by the time to time. सबसे पहले अपीलेट बोर्ड में कौन होगा? फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से एक चेयर पर्सन होगा. फिर कहा ना सब्जेक्ट इन द सेक्शन 4 द चेयरपर्सन ऑफ दिस मेंबर ऑफ द अपीलेट बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम. जो भी इसका प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम होगा तब तक वो जो ऑफिस होगा तब वहां पर उस ऑफिस को होल्ड करेगा और वहां पर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो फुलफिल करेगा. द चेयरपर्सन chairperson or any of the member of the appellate board may by writing under the hand और हाथ के साथ लिखकर अपना रिजाइन देगा टू द फेडरल गवर्नमेंट या उसकी जो पोजीशन होगी वो वकेट करवाएंगे बाय द फोर्सफुल रेजिग्नेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द फेडरल गवर्नमेंट. द मेंबर ऑफ द appellate board shall exercise the power including the power of inspector. The appellate board may appoint expert फॉर दी डिटेल सब्जेक्ट्स. एक तो उसके अंदर सेक्रेटरी होगा, एक उसका जो होगा डायरेक्टर होगा, दूसरा एक उसके पास होगा वो पर्सन जो कि एक्सपर्ट होगा और उसकी उसकी एक्सपर्ट जो है ना एडवाइस लेने के लिए हम उसको appellate board का मेंबर बनाएंगे. The appellate board with the approval of the federal government board by the notification of the official gazette make regulation to regulate the conduct of business. The appellate board shall meet at least every month. कब मिलेगा? The appellate should meet at least every month and shall decide any appeal preferred within the 60 days of the recipient of the appeal. और within 60 days उस जो यहाँ पे अपील जो है रिसीव हुई है उसकी जो है उसकी अपीलेट जो है ना प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा इन द फ्रंट ऑफ द बोर्ड and preventing from the drug from sufficient cases of the record. Within 60 days of the appeal, the appellate board held the meeting to decide the future of the appeal, whether the appeal should be followed or not. Appellate board of the provisional board authority. Any person aggrieved by the decision of the licensing authority may prefer appeal to the provisional appellate board. The provisional government shall constitute a provisional appellate authority for the disposal of the appeal and preferred for the another section जो है वो one as may be prescribed. तो यहाँ पे जो हमारा appellate board है और जो हमारा जो section part 1 of the chapter 2 of the पंजाब drug sorry पाकिस्तान drug act 1976 जो है वो खत्म होता है. आगे जो expert committees और जो आगे इसके sections हैं वो हम इसके part 2 में करेंगे. Thank you so much for listening. Subscribe to my channel और stay tuned for this प्लेलिस्ट और इस प्लेलिस्ट में पूरी जो ड्रग एक्ट 1976 है वो डिस्क्राइब की गई है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.